So we are having information that point E is on HP 30 mm in front of VP. On HP 30 mm in front of VP. Point F is on HP 30 mm behind VP. Point G is 30 mm above HP on VP, and point H is 30 mm below HP on VP. What is HP? HP is horizontal plane, and what is VP? VP is vertical plane. Now let us move ahead and discuss it in detail. So here, so what is the position of point E? For that we need to first see the draft of horizontal plane and vertical plane, placement of horizontal plane and vertical plane. Let us consider this as a vertical plane, and there will be a horizontal plane available over here. Horizontal plane और vertical plane दोनों है, and there will be an intersection line. Okay, and for the point E's position, we are having the information that point E is on horizontal plane. Point E कहाँ पे है? Horizontal plane पे है. So it is going to be available on this plane. इस plane पे वो available है. कहाँ पे available है? For that they have designated a criteria that it is going to be available on HP being 30 mm in front of VP. VP से 30 mm दूर है, in front माने आगे की ओर. So it is going to be situated over here somewhere. Point E. और इस point E का distance कितना है? You will be seeing that it is going to be 30 mm. So अब अगर मैं point E का projection ले रहा हूँ on vertical plane, then it is going to be situated over here somewhere. Point E's projection on vertical plane, which is going to be called E dash. और पॉइंट ई का प्रोजेक्शन एचपी पे वहीं पे मिलेगा जहां पे ई खुद है. सो दिस इज गोइंग टू बी ई. व्हाट वी जनरली डू, वी रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर 90 degrees. So now this position of point E is going to be transferred over here. So this is the new position E. वो कितना दूर होगा रेफरेंस से? इट इज गोइंग टू बी 30 mm अवे फ्रॉम द रेफरेंस, बिलो द रेफरेंस. सो इस केस में हमें कंडीशन कैसा मिल रहा है? दिस इज द ड्राफ्ट व्हाट वी नीड टू स्केच. दिस इज गोइंग टू बी द रेफरेंस एक्स वाई, और उस रेफरेंस एक्स वाई पे ही हमें ई डैश माने पॉइंट ईज एलिवेशन मिलने वाला है. एंड व्हाट अबाउट प्लान? इट इज गोइंग टू बी एट 30 mm. सो पॉइंट ई का जो प्लान है वो रेफरेंस से 30 mm नीचे मिलेगा. So this is going to be the position of point E. Now let us discuss about position of point F. Point F के बारे में क्या बोला जाता है? So point F is on horizontal plane 30 mm behind vertical plane. Vertical plane से पीछे है. Let us draft that position also. Let us take this as a vertical plane. Let us take this as a horizontal plane. This is going to be our reference. एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक रेफरेंस है. और पॉइंट एफ का जो पोजीशन है वो कहाँ पे बोला गया है? इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी के ऊपर है. सो इट इज गोइंग टू बी सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन ओनली. इसी प्लेन पे है. कहाँ पे है? 30 mm बिहाइंड वीपी. ये जो वर्टिकल प्लेन रहा उससे 30 mm पीछे है, बट इट इज ऑन एचपी. So this is going to be the 30 mm distance. This is going to be the position of point F. Point F का प्रोजेक्शन अगर वर्टिकल प्लेन पे लिया जाए तो वो रेफरेंस पे ही मिलेगा. So this is going to be called F dash point. और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो F का पोजीशन ही खुद उसका प्लान बनेगा. So this is going to be the plan of point F. What we do, we rotate horizontal plane by 90 degrees. So now this plan position of point F is going to be available over here. After rotation, this will rotate. और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 30. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द एफ पोजीशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द एफ डैश पोजीशन. हाउ टू ड्राफ्ट इट? विल बी हैविंग अ रेफरेंस एक्स वाई ओवर हियर. विल बी हैविंग पोजीशन एफ डैश ऑन द रेफरेंस and will be having position F. This time I have not used scale.
what is going to be the distance? It is going to be 30. So elevation of point F is going to be available on reference, and plan of point F is going to be above the reference. I hope you are clear about point E and F. Now let us discuss about G, point G. For point G, the details suggest that point G is 30 mm above HP on vertical plane. G कहाँ पे है? 30 mm above HP. So let us consider the planes over here. This is going to be the vertical plane. Let us take a new page. This is the vertical plane. This is going to be the horizontal plane. The intersection is going to be called reference XY. What is position of point G? 30 mm above HP on vertical plane. HP से ऊपर है और वर्टिकल प्लेन पे है, सो दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट G. ये पॉइंट G खुद है, कितना ऊपर है? अबव HP इट इज 30 mm, सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस 30 mm. ठीक है. नाउ व्हेन आई एम प्रोजेक्टिंग इट on the vertical plane, then position G itself is going to be the G dash. G का जो position है वही G dash होने वाला है. And when I am projecting it from top on the horizontal plane, then the top view is going to be on reference. So this is going to be called G. ठीक है. So now if I want to plot it, then how I am going to plot this criteria? We'll be taking a reference. एक reference create करेंगे which is having name XY, and on XY being perpendicular to it, I'll be positioning point G dash over here and G over here. So the plan of point G, what is plan? It is projection of point on horizontal plane. The plan of point G is going to be available on a reference, and the elevation of point G is going to be at 30 mm from the reference. Now let us discuss about point H. Point H is 30 mm below HP on vertical plane. So let us consider this as a vertical plane. Let us have a horizontal plane over here. Let us have a reference which is at intersection of horizontal plane and vertical plane. Condition क्या है? Point H कहाँ पे है? So we'll say it is on vertical plane के ऊपर है 30 mm below HP. HP से 30 mm नीचे है. So this is going to be the position of point H. अब पॉइंट H का प्रोजेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लिया जाए, सो इट इज गोइंग टू बी ऑन रेफरेंस, सो दिस इज गोइंग टू बी H. और उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे लिया जाए, सो इट इज इंडिकेटिंग सेम पोजीशन ऑफ H which is 30 mm from the reference. So this itself is going to be called H dash. So how to plot that point H? We'll be taking a reference over here which is XY. We'll be taking H over here which is plan of point H, and we'll be plotting H dash being at 30 mm from the reference. So this is going to be the presentation for point H. Now what about point I? If you are seeing the details, in details they have mentioned that point I is on HP and VP both. Point I जो है वो HP और VP दोनों पे है. तो पॉइंट आई कहाँ पे हो सकता है? इफ आई एम सेइंग दैट इट इज ऑन HP VP बोथ, सो लेट अस कंसीडर अ वर्टिकल प्लेन ओवर हियर, लेट अस कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवर हियर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, this is the vertical plane, and if I am saying it is on HP and VP both, so where it can be situated? It is going to be available over here. एक ही condition है जब वो point HP VP दोनों पे रह सकता है, जब वो HP VP के intersection line पे हो. So point I is going to be available over here on reference.
तो उसके प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे कहाँ पे मिल सकते हैं? विल से बोथ प्रोजेक्शंस आर गोइंग टू बी ऑन रेफरेंस, सो आई डैश एंड आई बोथ आर गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन रेफरेंस। हाउ टू ड्राफ्ट दैट वन? बहुत ही सिंपल है, एक रेफरेंस लाइन कंस्ट्रक्ट करिए, मेंशन पॉइंट आई एंड इंडिकेट आई डैश आई एट द सेम पोजीशन। आई डैश और आई को एक ही पोजीशन पे इंडिकेट करिए। दिस इज गोइंग टू बी द presentation of point I. I hope you are clear till the point I. Practice the data and refer more problems on same. Let us consider a region. I am considering this particular surface as a region, or this environment as a region, and I am separating this region in 4 parts by constructing a vertical plane and horizontal plane in it. मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरे रीजन को हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से, दिस इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज गोइंग टू बी वर्टिकल प्लेन, इस पूरे रीजन को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर रहा हूँ, वेदर इट इज योर रूम, वेदर इट इज योर सिटी, वेदर इट इज द अर्थ और इट इज द यूनिवर्स। आई एम सेपरेटिंग इट विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो क्या होगा, होल रीजन, आई एम सेइंग रीजन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। आई एम यूजिंग सरफेसेस, प्लेन्स एचपी एंड बीपी, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो पूरा रीजन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। बट स्टिल वी आर हैविंग अनदर region through which we will be able to observe the criteria, and that is going to be the profile plane. तो यहाँ पे एक और प्रोफाइल प्लेन रहेगा, ठीक है, जिस प्रोफाइल प्लेन से आप रेफरेंस कर सकते हो बाकी के पैरामीटर्स को विथ रेफरेंस टू एचपी एंड वीपी। तो पॉइंट जे के लिए कैसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? पॉइंट जे इज 10 mm अबव एचपी, एचपी से वो 10 mm ऊपर है, ठीक है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से वो 20 mm आगे है, एंड 30 mm फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन, वो प्रोफाइल प्लेन से साइड प्लेन से 30 mm डिस्टेंस पे है, ये 30 mm डिस्टेंस पे है। So that construction is going to be visible like this. You are having a vertical plane, you are having a horizontal plane, you are having a profile plane. तो इस प्रोफाइल प्लेन से वो कितना दूर है? इट इज 30 mm, ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट टू प्रोजेक्ट इट, यहां से मैं प्रोजेक्शन उसका ट्रांसफर करता हूं, तो वो प्रोजेक्शन मुझे कितना ऊपर मिलने वाला है? जे डैश, आई एम सेइंग इट एज अ जे डैश। जे डैश मुझे कहां पे मिलने वाला है? और प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल प्लेन, इट इज गोइंग टू बी 10 mm फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस से 10 mm ऊपर होगा। इन सिमिलर मैनर इफ आई एम प्रोजेक्टिंग इट टॉवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर उसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ऊपर से देखा, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, तो वो रेफरेंस से कितना दूर होगा? इट इज गोइंग टू बी 20 mm फ्रॉम द रेफरेंस। एंड इफ आई एम प्रोफाइलिंग इट ऑन द प्रोफाइल प्लेन, यहां से मैं प्रोफाइल प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड जे डबल डैश। द component point in plan is going to be called J, projected on vertical plane it is going to be called J dash, and projected on profile plane it is going to be called J double dash। तो ये J double dash रहा। अगर मैं उसे यहां से देखता हूं तो वो इस रेफरेंस एक्सिस से, वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर हो सकता है? इट इज गोइंग टू बी सेम डिस्टेंस विच हैड बीन इन्फॉर्म्ड ओवर हियर, तो वो भी प्रोफाइल प्लेन से 20 mm जितना ही दूर होगा, ठीक है, ये भी 20 ही रहेगा। वो प्रोफाइल प्लेन से कितना दूर है? तो विल बी सेइंग दैट इट इज 30 mm फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन। if you are not clear, I can do it with other reference also. Let us consider it again and refer the same positions. This is going to be the vertical plane, this is going to be the horizontal plane, and this is going to be the profile plane. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, विथ रेफरेंस टू प्रोफाइल प्लेन ओनली, इस प्रोफाइल प्लेन के रेफरेंस से ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
तो पॉइंट जे के लिए क्या बोला गया है, पॉइंट जे इज ओवर हियर एंड इट इज 30 mm फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन, 10 mm फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 20 mm फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। तो एक प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा ऑन वर्टिकल प्लेन, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा विच इज प्रोफाइल प्लेन। आई एम कॉलिंग इट एज जे डबल डैश, जे एंड जे डैश। अब डिस्टेंसेस रेफर करिएगा, पॉइंट जे एचपी से 10 mm ऊपर मिलेगा, पॉइंट जे वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर मिलेगा और प्रोफाइल प्लेन से वो 30 mm दूर मिलेगा। बट स्टिल इट इज हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से तो वो 20 mm दूर ही है। नाउ हाउ टू प्रोजेक्ट दैट वन? I'll be drafting a reference, horizontal reference and a vertical reference. इस केस में दोनों reference draw होंगे, x y, x dash y dash. Where is x y in our observation? This is going to be the x y. And where is x dash y dash? The intersection line of profile plane and vertical plane. It is going to be x dash y dash. I hope you are able to understand this one. Now where to project this point? So we are having one information that point J is 10 mm above HP. So what I am going to do is I'll be dropping a point at 10 mm. I'll be drafting a locus at 10 mm, locus of point J. ये locus बन गया locus of J dash. अब यहाँ पे बोला है कि point is 30 mm फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन है वहां से 30 mm दूर हमें ये पोजीशन मिलेगा। सो आई विल बी टेकिंग इट ओवर हियर, यहाँ से 30 mm पे एक पोजीशन मार्क करूंगा एंड नाउ दिस पोजीशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड जे डैश। व्हाट अबाउट जे प्लान? इट इज 20 mm फ्रॉम द रेफरेंस, रेफरेंस से 20 mm दूर है क्योंकि हम लोग एचपी को 90 डिग्रीज रोटेट भी कर रहे हैं, इस प्रोफाइल प्लेन को भी 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे। सो यू विल बी हैविंग दिस ऑब्जर्वेशन नाउ। ये वीपी वाला जोन रहा, ये एचपी का जोन रहा और ये प्रोफाइल प्लेन का जोन रहा। सो दिस विल रोटेट एंड मूव ओवर हियर एंड दिस विल रोटेट एंड मूव ओवर हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी जे एंड दिस इज गोइंग टू बी जे डबल डैश। तो यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, रेफरेंस से कितने mm पे हमें j मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एट 20, j डैश कितने पे मिला, इट इज गोइंग टू बी एट 10 और वर्टिकल प्रोफाइल से वो कितना दूर है, सो इट इज गोइंग टू बी एट 30। नाउ व्हाट अबाउट j डबल डैश प्रोफाइल प्लेन व्यू? सो इट इज गोइंग टू बी 20 mm। उसके लिए हमें क्या करना है, वी आर ट्रांसफरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट j ऑन वर्टिकल रेफरेंस, J का प्रोजेक्शन वर्टिकल रेफरेंस पे शिफ्ट किया। वी आर हैविंग ओरिजिन ओवर हियर, इंटरसेक्शन जोन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये जो इंटरसेक्शन जोन है वहां से J के जोन जितना रेडियस ले लेंगे, विल बी टेकिंग दिस डिस्टेंस एंड विल बी मेकिंग एन आर्क ऑन दी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस till the horizontal reference। तो ये रहेगा हमारा आर्क। Follow the procedures what I have designated and then I will transfer that projection which will intersect the locus of J dash and this position is going to be called J double dash। तो आपका ड्राफ्ट जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, फॉर पॉइंट J it is going to be like this and these are going to be the dimensions 30, 10, 20 and 20। this is also going to be 20 क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 20 it is going to be available over here also। ये भी 20 है, ये भी 20 रहेगा और अगर मैं इसे ट्रांसफर करता हूँ तो ये आर्क लेंथ भी 20 रहेगा, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस भी 20 ही रहेगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द ड्राफ्ट फॉर पॉइंट J।